Okay. Macroeconomics, weak theories and teaching. So if you are referring to Sandeep Garg, adjust your topics accordingly. You can use any book. Sandeep Garg and VKORI are perfectly fine. Both the books are perfectly fine. But I am using VKORI. In case you are using Sandeep Garg, you can adjust your syllabus. Same ही चीजें पढ़ा रखी हैं दोनों ने. At the end it is macroeconomics. It's just the chapter number और उसने कोई chapter में ज़्यादा content इधर है उधर है. That is it. That is the only difference. Content is similar. In case if you are referring to Sandeep Garg and if there is a topic which is not there in VKORI but it's there in your book and आपको पढ़ने के बाद वो नहीं समझ में आ रहा है, you can come up to me. I will take it in the class. Okay. So in the last class हम लोगों ने बात करी थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में हमने एग्रीगेट्स निकालना सीखा था, जिसमें मैंने time and again I repeated in the video that there are 3 circles which you have to remember. I'll make those circles again to know, to see if you remember those or not. सबसे पहले if we have to go from national product to domestic product, what do I add or subtract? क्या करेंगे? Minus what? Minus NFIA, that is net factor income from abroad. What is the formula for NFIA? NFIA is equals to factor income from abroad minus factor income home. Clear? Understanding everybody? Next, if I have to go from domestic product to national product, then I would add NFIA. Moving to market price and factor cost. If I have to go from market price to factor cost, market price is something which is bigger, no? ये वाले जो market price, national product, growth की क्या है ये? बड़ी values है, added values है. अभी market price से मुझे factor cost में जाना है, तो I will what do? Minus NIT is net indirect taxes. What is NIT? NIT is net indirect taxes, which means IT, that is indirect taxes minus subsidy. Good. Now I have to go from factor cost to market price. What will I do? Add NIT. Now gross to net minus depreciation, and next to gross plus depreciation. I'm using these 3 major important circles and their values. हमने कुछ questions मैंने एक aggregate दिया और उससे related आपको questions करने थे. Now I give an aggregate and you will solve it. If GNPFC is equals to equal NNP NDP MP. You have to find NDP, MP, CFC. What is CFC? Consumption of fixed capital. That is what? Depreciation. Okay, that is factor income to abroad. This is IT, indirect taxes, and this is subsidy. You have 5 minutes. Do it fast. Okay. So now NDP, MP के लिए you will use first is GNP, FC. What you will do first? First thing you have to do is from gross to net. What will you do? Minus CFC. Okay. Now next is from national product to domestic product. What do we have to do for that? Minus NFIA. Then it's from market price to factor cost. What will you have to do? मार्केट प्राइस निकालना है एफसी से, तो क्या करोगे? प्लस एन. Put the values. GNPFC is 20,000 rupees.
CFC is 240. Now what is the value of NFIA? Minus 4000 plus what is the value of NIT? What is the value? Minus 200 हो गया ना? So it's all right. Now what is the answer? Final answer क्या है? 20,000 minus 240 plus 4,000 minus 200. हो रहा है सबसे आ रहा है? Everybody is understanding? NIT का formula is IT minus subsidies. NFIA का formula is factor income from minus 2. If from is not given, you will be taking it as 0. 0 minus a value will be the minus of that value. ठीक है? Understanding? Should I move on? So there were certain 4 types of 8 related aggregates: GDPMP, NNPMP, NDPMP और GNPMP. ऐसे ही FC के साथ था. अंडरस्टैंडिंग? तो 8 एग्रीगेट्स आपको निकालना आना चाहिए. Next is your nominal GDP. Next topic is nominal GDP and real GDP. Okay, what is nominal GDP? It refers to GDP at current prices. Current prices मतलब prevailing. अभी क्या prices चल रहे हैं, उस price पे अगर हम what is the full form of GDP? The gross value of all goods and services produced in a domestic territory in an accounting year. So current prices पे जब मैं GDP calculate करूँगी, मतलब जो prevailing prices चल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Nominal GDP बोलते हैं. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using current year prices. मतलब इसी साल जो भी मैं अगर मैं 20-21 की निकालूंगी तो 20-21 में अगर मैं GDP निकालूँ तो that will be my nominal GDP. Current year prices are the prices prevailing during the year of estimation. Current year prices वो prices होते हैं जो मेरे estimation year में चल रहे होते हैं. अगर मैं 20-21 की GDP निकालनी है तो जो प्राइस रेट 20-21 में चल रहा होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंगली जब मैं GDP निकालूंगी तो दैट विल बी नोन एज माय नॉमिनल GDP. समझ में आ रहा है? So nominal GDP is equals to Q into P. In this case, Q is the quantity of final goods and services and P stands for prevailing prices of the. The above equation shows that nominal GDP can increase when there is an increase in either Q or P. समझ में आ रहा है? अगर Q की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तब भी नॉमिनल GDP की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अगर प्राइस बढ़ जाएगा तब भी नॉमिनल. इट्स अ मल्टीप्लिकेशन. नो, मल्टीप्लिकेशन का तो यही मतलब है एक भी वैल्यू इंक्रीज हो दोनों में से द रिजल्टेंट विल इंक्रीज. होगा कि नहीं होगा? If it increases owing to increase in quantity, अगर quantity increase होती है, मान लो earlier the quantity was 10 and price was 5, nominal GDP was 50. Now if the quantity increases, price is still constant. Quantity is now 15 and price is 5. What will be the GDP? 75. So if it increases owing to the increase in Q, P is constant, it shows increase in the nominal GDP owing to increase in output. अगर तो प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी तो इट विल बी इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी owing to the change in प्राइस. प्राइस की चेंज होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी चेंज होगा तो नॉमिनल जीडीपी इन रिलेशन टू प्राइस. क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से अगर नॉमिनल जीडीपी चेंज होगी तो दिस विल बी द चेंज इन रिलेशन टू चेंज इन क्वांटिटी. समझ में आ रहा है? It shows increase in the nominal GDP owing to the increase in the general price level. It is merely a monetary increase in GDP and is of little significance. तो
तो बेसिकली अगर आपने सिर्फ प्राइस बढ़ाया, प्राइस बढ़ने से आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई, तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। इकोनॉमी को तो फायदा कब होगा, जब गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ेगी। मैं अगर इकोनॉमी में को प्राइस बढ़ा के मुझे ज्यादा फायदा है, या मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा है, क्वांटिटी बढ़ा के। तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है जब उसकी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ना कि उसकी प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज होने से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्राइस इंक्रीज होने से भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, बट इट इज ऑफ नॉट वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंट, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होती है। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं मार्केट में। इससे सिर्फ एक मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन का मतलब अरे पैसे सारे कमा रहे हो, बट एक्चुअली में इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग ना। क्यों? आपने तो चलो पैसे, आप एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ज्यादा पैसे कमा रही हूँ, बट एज अ कंज्यूमर मैं खर्चा भी तो कर रही हूँ ना ज्यादा। अगर मैंने कोई चीज, मैंने शर्ट बनाई, मैंने उस शर्ट को महंगा कर दिया, आपका एक्सपेंडिचर, आप वो शर्ट खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ गया ना। इन रिजल्ट तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो पैसा मैंने कमाया वो सर्कुलेट तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से तो बाल खींच ही रहे हो ना, बट लेकिन व्हेन यू इंक्रीज द आउटपुट तो इकोनॉमी का एक एडवांटेज होता है, ज्यादा बेनिफिट समझ में आया। जब आपकी गुड्स और सर्विसेज ही इंक्रीज हो जाएगी तो फिर उनकी वैल्यू एक्चुअली में तब ज्यादा मैटर करेगी। नेक्स्ट इज रियल जीडीपी। इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि आप प्राइस कांस्टेंट रखोगे, प्राइस चेंज नहीं करोगे। नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस, रियल जीडीपी इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में आप प्राइस चेंज नहीं करोगे। ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज यूज्ड एज एस्टिमेटेड यूजिंग अ बेस ईयर प्राइस। तो इस केस में क्या होता है ना, एक बेस ईयर सिलेक्ट किया जाता है, एक ऐसा साल सिलेक्ट किया जाता है जिस टाइम पे जीडीपी काफी बैलेंस्ड रही हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आई हो, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन। दिस इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन ना। मैं कभी भी कोविड के सालों को बेस ईयर लूंगी नहीं लूंगी, क्योंकि इसमें तो कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज थी। तो आप बेस ईयर एक ऐसा ईयर सिलेक्ट करते हो जो पूरा साल मोर और लेस बैलेंस चला हो, कोई भी ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज वगैरह नहीं हो, कुछ मतलब इकोनॉमिक को बहुत कहीं भी बहुत ज्यादा हार्ड हिट ना मिला, दैट इज सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर। जब आप बेस ईयर को रख के जीडीपी कैलकुलेट करते हो, इस इन दैट केस दिस इज नोन एज अ रियल जीडीपी। So it is the year when macro variables जैसे कि production और general price level believes to be within their normal, right? मतलब एकदम से ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में increase हुआ ना किसी चीज़ में decrease होता है, उसको हम क्या लेते हैं as the base year. Real GDP का फॉर्मूला होता है Q into price, but this star which signifies what? कि price prevailing during the base year constant, कि बेस ईयर में कितनी प्राइस थी उसके हिसाब से हम रियल जीडीपी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल बेस ईयर में प्राइस वाज 10 रुपीज और मैंने अभी क्वांटिटी भी कितनी करी 100, दैट विल बी 10 into 100, दैट विल बी 1000। नाउ मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होके 200 हो गई, बट ये प्राइस क्या है, ये तो बेस ईयर का प्राइस है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ दिस इज व्हाट शोज द actual या फिर real growth in your domestic। समझ में आया? जब आपने प्राइस कांस्टेंट रखी तब जाके आपको पता चला ओके, सो जब गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होती हैं तब जाकर मेरी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज नोन एज योर रियल। The above equation shows that real GDP increases only when, इस केस में GDP सिर्फ तभी इंक्रीज होगी जब क्वांटिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो सेम है। So when the real GDP increases, there is surely an increase in the flow of goods and services. Okay, estimation of nominal GDP और रियल जीडीपी बता दिया है मैंने, आपको वैल्यूज दी होंगी, आप उस हिसाब से एक साल होगा जो कि एक बेस ईयर की तरह होगा और आप इस हिसाब से एडजस्टिंग करेंगे। जैसे कि चलो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, एक साल इन्होंने लिया है 2011-12 और दूसरा ईयर इन्होंने लिया है 2018 एंड 19।
दो हम लेते हैं, एक व्हीट एंड क्लॉथ, व्हीट एंड क्लॉथ। व्हीट क्वांटिटी थी 20, मैं 10 करके लिख रही हूँ। क्लॉथ की क्वांटिटी थी 100, 20 एंड 100। दिस इज क्वांटिटी। नाउ प्राइस, व्हीट का प्राइस इन 2011 12 था, ये बहुत महंगाई खड़ी, 100 रुपए। और क्लोथ का प्राइस था 5 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। ये 20 इज पर, नॉट 20, ठीक है, समझ में आया? 20 into 100 करोगे, समझ, ओके, अंडरस्टैंडिंग। पूरे 20 की प्राइस नहीं है ये, ईच यूनिट की प्राइस। अभी 1918 आ गया, महंगा हो गया, गेहूं हो गई है 1000 रुपए का, और कपड़ा हो गया है 20 रुपए का पर मीटर। इंक्रीज क्या होगी वैल्यूज? व्हाट इज द वैल्यू? 2000, 500, 20,000 और 2,000। इंक्रीज है, but this is increase due to just because of ये इंक्रीज किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से है। एंड दिस इज योर नॉमिनल जीडीपी। दिस इज व्हाट? नॉमिनल जीडीपी। इन केस मैं प्राइस कांस्टेंट कर दूं, प्राइस कांस्टेंट कर दूं और क्वांटिटी सिर्फ चेंज कर दूं, प्राइस कांस्टेंट कर दी, क्वांटिटी चेंज कर दी, अब क्या होगा? अब क्वांटिटी की वजह से होगा, और जब वो चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। समझ में आ रहा है ना? इट्स वन एंड द सेम थिंग। Q इनटू प्राइस करना है आपको बस। Q इज योर क्वांटिटी, प्राइस इज योर प्रिवेलिंग प्राइस। जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालोगे तो करंट प्राइस देते हो, और जब आप रियल जीडीपी निकालोगे तो एक बेस ईयर दिया जाता है, उसकी प्राइस को लेके आपने जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो ये डिफरेंस क्या है? फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी, करंट ईयर, रियल जीडीपी, बेस ईयर। Nominal GDP is known as GDP at current prices. Real GDP is known as GDP at constant prices. Nominal GDP में क्वांटिटी और प्राइस दोनों इंक्रीज हो सकता है, बट अगर प्राइस की वजह से इंक्रीज होता है तो then it is of no significance. रियल जीडीपी केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो जीडीपी में चेंज आता है इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। उससे हमें अपनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला Q into P, P stands for prevailing prices. रियल का फॉर्मूला Q into P star, P star stands for prices of the base. Any doubt till now? Should we move on? So conversion of nominal GDP into real GDP. अगर ये जो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी आपसे निकलवाने को नहीं बोलेंगे, आपसे मेजर ये पूछा जाता है कि अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी दी हुई है तो आप रियल कैसे निकालोगे? रियल दिया हुआ है तो नॉमिनल कैसे निकालोगे? तो दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट current prices minus price index into 100. So real GDP का फॉर्मूला क्या है? GDP at current prices divided by price index into 100. Now if I have to take, अब उल्टा कर लो, यहाँ पे मुझे nominal GDP, these are the formula you have to remember. Nominal और real GDP का फॉर्मूला नहीं भी आ जाएगा then also it's fine. GDP stands for real GDP into price index on 100. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपने याद रखने हैं। रियल जीडीपी अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है और मुझे रियल जीडीपी निकालनी है, सो दिस इज द फॉर्मूला आई फॉलो। और अगर मुझे रियल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है और मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, दिस इज द फॉर्मूला आई विल फॉलो। In this case, what is price index? Price index क्या होता है आपका? What is price index? जो आपकी prevailing prices, प्राइस जो चल रही होगी उसको हमने क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स आपको दिया होगा, इनके बताया होगा कि दिस इज द प्राइस इंडेक्स। नहीं बताया होगा सो हाँ, प्राइस इंडेक्स
and if the price index rises from 100 to 400 within the same period. तो आपका प्राइस इंडेक्स क्या हो गया? 400, 100 से 400. प्राइस इंडेक्स दिया होगा डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको, ठीक है? प्राइस इंडेक्स निकालने की आपको जरूरत नहीं है. चलो नाउ करो नॉमिनल जीडीपी फॉर दिस वन is equals to 30,000. Price index for both is equals to 500. In this case, real is equals to 40,000 and price index is constant. चलो निकालो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन बोथ द केसेस व्हाट विल In this case, real GDP ढूंढे यानी nominal की वैल्यू दी हुई है. In this case, real की वैल्यू दी हुई है, nominal ढूंढे. Price index is 500 for both the cases. Okay, so real GDP, nominal GDP, got everybody difference. If MCQ clear है तो ठीक है, but to understand the difference between the two, nominal is बट नॉमिनल का मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम का. नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम का. जो आप करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, ये सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से हो रही है. जो आप बेस ईयर की प्राइस लेके करोगे उससे आपको आपका एक्चुअल ग्रोथ पता चलेगा ना. जब आपने 12 का अभी के प्राइस कांस्टेंट रखा बट सिर्फ क्वांटिटी में चेंज देखा तो उससे आपको एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ पता चलेगी कि ओके हमारी इकोनॉमी ने कितनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया विदिन दिस. क्लियर? नाउ देयर इज वन कांसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर. I am preparing for UPSC examinations, army and everything. This question was there in the exam once. What is GDP deflator? GDP deflator का फॉर्मूला क्या होता है? GDP deflator. Deflator कुछ नहीं होता. Deflator का मतलब basically होता है ratio. What is a deflator? Deflator is a ratio between nominal GDP and real GDP. Nominal GDP, real GDP into 100. This into 100 is done only to reduce your burden of calculation. ठीक है? So basically what is GDP deflator? ये याद कैसे भूल कैसे जाता है? मैंने भी पढ़ा था पर मैंने गलत कर दिया था ये क्वेश्चन. I forgot कि रियल ऊपर होता है कि नॉमिनल ऊपर होता है. तो ये ध्यान रखना कि नॉमिनल GDP divided by real GDP into 100. So it is the ratio between the GDP at current prices to the ratio of the GDP at the base price. समझ में आया? This is what GDP deflator is. GDP deflator आपको एक्चुअली में ये बताता है कि कितना प्राइस लेवल में कितना प्राइस में चेंज है. प्राइस तो पता चलेगी ना. जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा वैल्यू किस चीज की? प्राइस की वैल्यू बच जाएगी. नॉमिनल और रियल में से किस चीज की वैल्यू बच जाएगी? प्राइस की वैल्यू बच जाएगी. तो आपको उससे चेंज इन प्राइस या फिर प्राइस लेवल पता चलता है आपका प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज आया है विद इन अ टेरिटरी. Clear? Understanding? So moving on, GDP and welfare. GDP और welfare की बात कर रहे हैं. तो welfare कब होगा आपका? जब चीजें आपको महंगी मिलेंगी या जब चीजें आपको ज़्यादा मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी obviously. तो real GDP जो होती है, that is your एक इंडेक्स कंसिडर किया जाता है welfare को मैनेज करने के लिए. So what is real GDP? Real GDP is considered as an index to manage welfare. Welfare इंसान ह्यूमन बीइंग किसी का भी welfare अगर हमको सरकार को अगर welfare देखना है तो वही देखेगी कितने गुड्स सर्विसेज आपके पास. आपको भी अपना welfare देखना है तो क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना. गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो
वेलफेयर किस टर्म से मेजर किया जाता है कि आपके पास गुड्स और सर्विसेज कितने, जितनी हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी ज्यादा हायर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हायर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हायर इज योर वेलफेयर। समझ में आया? सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ दिक्कत है रिलेटेड टू पॉजिटिव रिलेशन, जीडीपी और वेलफेयर के बीच में कुछ रिलेशनशिप में दिक्कत है। वो क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अनइक्वल कर दोगे, मतलब किसी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या किसी को कम पैसे मिल रहे हैं, इन दिस केस जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट। अभी जीडीपी तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी तो बढ़ ही रही है ना, पैसे आ रहे हैं आपको, बट इससे आपकी सोशल वेलफेयर नहीं हुआ। जब जस्ट आप ऐसे समझ लो, अभी अंबानी है, अंबानी इज अर्निंग, अंबानी का जो प्रोडक्शन है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, बट इज इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर? दैट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट या नॉट ऑलवेज अ केस। हो सकता है आपकी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बन रहे हो, जीडीपी की वैल्यू आपकी ज्यादा आ भी जाए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सोशल वेलफेयर हो रहा हो। इंडिया करंटली इस सिचुएशन से गुजर रहा है वेरियन हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, बट जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैकवर्डनेस है, उसमें कोई चेंजेस हमको नहीं दिख रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी may not be welfare oriented. Increase in the production of defense goods does not lead to, अब जैसे जरूरी नहीं है ना कि जब मैंने डिफेंस प्रोडक्शन बना, डिफेंस के लिए गन्स बनाई, आर्टिलरी बनाई, टैंक्स वगैरह बनाए, इससे प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी इंक्रीज होगा, बट वेलफेयर मुझे मेरे किस काम का है, आपके किस काम की है, वो गन किसी काम की है आपके। सो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई, पर उस प्रोडक्ट बनाने से आपको इस तरीके का कोई वेलफेयर नहीं। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जैसे रूरल इकोनॉमी, जैसे बार्टर सिस्टम वगैरह करते हैं, इसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होता है, वो एक गुड को से दूसरा गुड एक्सचेंज कर लेते हैं। सो इन दिस केस सच ट्रांजैक्शन की अनरिकॉर्ड, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग हुई नहीं, इससे आप जीडीपी की अंडर एस्टिमेशन हो जाती है। अंडर एस्टिमेशन मतलब जब आपके पास वैल्यू ही नहीं है, आपने कुछ काउंटिंग ही नहीं करी, तो आपको नहीं पता चला ना कि कहाँ कितना कैसे गया, क्योंकि आपने गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर लिया। हो सकता है आपकी गुड की वैल्यू ज्यादा हो उसके गुड की वैल्यू से, बट नीड के हिसाब से आपने एक्सचेंज कर लिया एंड नाउ जीडीपी में उसका एस्टिमेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सटर्नैलिटीज? गुड और बैड इम्पैक्ट। जैसे कि पॉल्यूशन है, अभी पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? ज्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से। ज्यादा इंडस्ट्रीज का मतलब क्या? ज्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इजंट इट? More industries will supply more of goods and services. More of goods and services will lead to higher GDP, but it will also lead to pollution, which harms your welfare. इससे आपका welfare खराब हो रहा है। These are externalities. Externalities मतलब जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है डायरेक्टली, बट वो आपको हार्म करती है, वो आपको इम्पैक्ट करती है। ये बहुत तरीके की होती है, गुड भी होती है, बैड भी होती है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, अभी ट्रैफिक लाइट का आपने नहीं लगवाई है ना, वो आपने उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं, सरकार ने लगाई। इट इज अ गुड एक्सटर्नैलिटी जो आपको डायरेक्टली आप ट्रैफिक लाइट लगाने का सरकार को पैसे नहीं दे रहे हो, यू जस्ट पेइंग अ टैक्स, गवर्नमेंट अपने आप लगा रही है। क्लियर? ऐसे ही जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नल, जैसे कोई आपकी सोसाइटी में एक बंदा रहता है, उसने अपना गार्डन पार्क बना लिया, 2-4 पेड़ लगा लिए, आपने नहीं लगाया, उसने लगाया, बट उसके वो 4 पेड़ लगाने से पॉल्यूशन कम हो गया, या बर्ड्स वगैरह आने लग गए, अच्छा मौसम साफ, क्लियर, व्हाटएवर। ये सब क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसमें आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बट इट इज हेल्पिंग यू और हार्मिंग यू विदाउट योर हैंड इन इट। समझ में आया? So 4 limitations. First is distribution of income. Second is composition of GDP. Third is non-monetary exchange, and fourth is externalities. This is the end of the 3rd chapter according to BKORI. I will start with the calculation of national income in the next class.